of Parliament Ladakh, Shri Haji Hanifa Jan Sahib. I would like to extend a warm welcome to Honorable Vice Chancellor, University of Ladakh, Professor Dr. Saket Kushwaha. Our special guest for today's occasion, Honorable Executive Councillors of LHDC Kargil, Shri Kacho Muhammad Feroz Sahib. I would also like to extend a warm welcome to Sonam Bang. I would also like to extend a warm welcome to Shri Imtiaz Kacho, ADC Kargil. I would also like to extend a warm welcome to CPO Kargil, Shri Hadi Sahib. I would also like to extend a warm welcome to Madam Monisha Akbarji, President IALS. I would also like to extend a warm welcome to Munshi Nasir Sahib. I would also like to extend a warm welcome to Dr. Abbas Sahib. Madam Principal Mrs. Angole is also here. Collins, in the wake of the third colloquium at Kramhut, forgive my pronunciation, near Dresden in East Germany, the headquarters of the Moravian Dr. Jafar Akhon, Honorable Member of Parliament Haji Hanifa Jan Sahab, Honorable Vice Chancellor Jinab Khushwan Ji, worthy Deputy Commissioner Rakesh Kumar Ji, Honorable Executive Councillor Zanskar Affairs and Rural Tehsil, Honorable Chairman Ladakh Hajj Committee Jinab Majaz Sahab. Academy soon after publish is edited, we will commit it to publish these books and we will distribute free of course. Thank you so much for once again. Hats off to them. और 21st ILS कॉन्फ्रेंस जो कि यहाँ पे लास्ट कॉन्फ्रेंस MP सर से भी मेरा डिस्कशन हो रहा था, तब सर बोले थे लास्ट टाइम में जब CC था तब भी यहाँ पे ILS का कॉन्फ्रेंस हुआ था और आज भी हो रहा है, तो ऑलमोस्ट 2015 के बाद 10 साल बाद करगिल को फिर से अपॉर्चुनिटी मिली। इसके लिए ILS यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख एज वेल एज कल्चरल एकेडमी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने करगिल को एज ए डेस्टिनेशन चूज़ किया जहाँ पे ILS यहाँ पे कॉन्फ्रेंस करवाने के लिए। और कॉन्फ्रेंस का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करगिल और लद्दाख के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि डाइवर्सिटी हम जब देखें, चाहे कल्चर की बात करें, चाहे टूरिज्म की बात करें, चाहे इकोलॉजी की बात करें, चाहे जियोलॉजी की बात करें, चाहे नेचुरल ट्रांजिशन जो होता है उसकी बात करें, इन टर्म्स ऑफ दीज डाइवर्सिटी लद्दाख इज वेरी मच रिच। और इस डाइवर्सिटी ही हमारे स्कॉलर्स और जितने भी हमारे राइटर्स हैं इनके लिए गोल्ड माइन की तरह काम करता है और ये आगे आने वाले फ्यूचर में भी गोल्ड माइन की तरह काम कर रहा है। इसके लिए ILS इंश्योर कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ पे लोग रिसर्च करें और एक अच्छी आउटपुट रिजल्ट यहाँ पे निकाले जो कि इन फ्यूचर हमें पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प करे और आगे आने वाले टाइम में भी जैसे हमें टूरिज़्म और हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट करने में भी हमारी हेल्प करेगी। और इस एक वेरी थॉटफुल और जो कमेंडेबल इनिशिएटिव था इस ईयर का, एक जो ओपन थीम अप्रोच इन्होंने रखा था यहाँ पे ILS के कॉन्फ्रेंस में, जिसमें भी जिस डाइवर्सिटी से यहाँ पे पेपर प्रेजेंट किए गए हैं हमारे यहाँ के कल्चर को डाउन द लाइन एक मैसेज की तरह फैलाए, हमारे यहाँ टूरिज्म जो पोटेंशियल है उसको एक मैसेज की तरह आगे फैलाएं। बिफोर आई कंक्लूड आई वुड लाइक टू थैंक LHDC Kargil to remain fully committed for supporting such a meaningful academic and cultural engagement in the years ahead। और मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ कि ILS ऐसे ही कॉन्फ्रेंस यहाँ कंटिन्यू करवाते रहेगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और LHDC Kargil से जो भी हेल्प बन पड़ेगी वो हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।
Baruda dosi lalangona Anyela karse tayam Yulus kirtonge Baruda dosi lalangona Anyela karse tayam Yulus kirtonge Lankar se yuskil bolastena aoloma vetayam erzilingu kile Lankar se yuskil bolastena oloma vetayam Sammaso yang nange asudinam zam diniram se sammaso la 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 We have a guest here, Honorable MP साहब, आपको नमस्कार। राकेश सर यहाँ पे हैं, हमारे डीसी साहब, उनकी पूरी टीम यहाँ पे है। आज के इस टीम के इस कार्यक्रम के संयोजक ऑर्गेनाइजर्स, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। सभी अतिथि, all the honorable guests, ladies and gentlemen, media fellow, and everyone who is here, my most sincere greetings. Jule, Assalamu Alaikum. Let me A token of appreciation for Honorable Councillor of LHDC Kargil, Shri Engineer Punsab Tashi Sahib. For worthy Deputy Commissioner cum CEO. A token of appreciation for Dr. Amjad Ali. Honorable Chief Guest presenting memento to Ma'am Monisha Ahmed, President IALS. फिरोज हाथ पीछे रहा, हाथ पीछे। Anwar Hussain. Yeah. Thank you, sir.
Thank you so much, sir. A token of appreciation for Madam District Angmo Principal GDC Kargil. Token of appreciation, former President IALS. Thank you so much, sir, for your contribution. Thank you so much, everyone. Thank you among us. इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर लद्दाख स्टडीज़ ने 10 साल के बाद जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है वो करगिल में एक बार फिर मुनक़्क़द किया गया है और इस कॉन्फ्रेंस में देश और विदेश से मुख्तलिफ जो राइटर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उन्होंने अपना पेपर इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया है। ये इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर लद्दाख स्टडीज़ जो कॉन्फ्रेंस करगिल में मुनक़्क़द किया है लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज IALS एसोसिएशन और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के कोलैबोरेशन में 3 रोज़ा जो कॉन्फ्रेंस है मुकम्मल हुआ है और TFC करगिल में क्लोजिंग सेरेमनी मुनक़्क़द किया गया है और क्लोजिंग सेरेमनी में लद्दाख के मुख्तलिफ जो नामवर शख्सियात हैं, स्कॉलर्स हैं, उनके साथ साथ जो पॉलिटिकल और जो लीडर्स हैं उन्होंने शिरकत की है। 10 साल के बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है, तो किस तरह की कोशिश आप लोगों की रही इसको कामयाब बनाने के लिए और कितने देशों से जो है स्कॉलर्स ने, रिसर्च स्कॉलर्स ने शिरकत की पेपर प्रेजेंट? सबसे पहले मैं लद्दाख कल्चरल एकेडमी, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर लद्दाख स्टडी और यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ कि आप लोग अपने वक्त निकाल के इस प्रोग्राम में आए। ये हमारा क्लोजिंग सेरेमनी है। ये 4 दिन का जो कॉन्फ्रेंस है, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमें 10 साल के बाद करगिल को मेज़बान करने का मौका मिला। इस साल इसके लिए हमने 2 साल कड़ी मेहनत की और 1 साल पहले ही हमने प्लान में रखे। तो इसमें जो है आपको पता है कि IALS जो है 1980s में इस्टेब्लिश हुआ है और 86 में इसका प्रॉपर जो है इसको चलाया गया और 1980 के बाद 81 में इसका कॉन्फ्रेंस हुआ था, फिर 86 में हुआ था। और तब इसका क्या होता है, बाइनोल होता है। 1 साल इंडिया में होता है, इंडिया में या लद्दाख में या लेह या करगिल में। नेक्स्ट ईयर फॉरेन की किसी कंट्री में, जैसे ऑक्सफोर्ड में हुआ, जर्मनी में हुआ, फ्रांस में हुआ, तो बहुत से कंट्रीज़ में बहुत से यूनिवर्सिटियों के साथ कोलैबोरेशन में हुआ। तो हमें 2015 में तब JNK कल्चरल एकेडमी था, मेज़बान करने का मौका मिला। तब इसी जगह पर इसी बिल्डिंग में, तब वो छोटा सा बिल्डिंग था, बहुत ही रेनोवेट करके बढ़िया बिल्डिंग और बहुत ही लोकेशन अच्छा बना। तो हमें ये खुशी है कि जितनी भी बाहर से आए हैं, तकरीबन 20-30 कंट्रीज से लोग आए और हिंदुस्तान की कोने कोने से टोटल 96 हमारे रिसर्च स्कॉलर की पेपर प्रेजेंटेशन यहाँ पर अप्रूव हुआ, जो स्क्रूटनाइज हुआ, जो हमारे एक्सपर्ट कमेटी थे, और 150 टोटल उन्होंने सबमिट किया था। तो अनफॉर्चुनेटली वेदर प्रिवेलिंग की बात, आपको पता है कि पंजाब में फ्लड आया, हिमाचल की रोड वश हुआ और हमारे जम्मू में और कारगिल की बहुत जगह पर नुकसान हुआ। इसकी वजह से बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं भेजा। हम समझ सकते हैं उनकी जो उनकी मजबूरियां हैं, फिर भी हमने दावा दिया, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस है वो कैंसिल नहीं कर सकता। बहुत से लोग बाहर से आए हुए हैं, तो हमने कोशिश की। फिर बहुत से लोगों ने हमें ये ऑनलाइन अटेंड भी किया और 53 हमें आज 3 दिन में हमें अभी तक जो ये पेपर प्रेजेंटेशन, और वो भी बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड, और ये आने वाले दौर में कल्चरल एकेडमी ने इसको एडिट करके हम इन द फॉर्म ऑफ बुक हम पब्लिश करेंगे और लोगों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश करेंगे, या यूनिवर्सिटी या लाइब्रेरी उनके साथ टाइप करेंगे। तो हमें खुशी है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट कारगिल को किस तरह का बहुत ही इंटेलेक्चुअल, जो एकेडमिक, जो रिसर्च ओरिएंटेड इस तरह की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमें मौका मिला ऑर्गेनाइज करने का। ये हमारी खुशनसीबी है, हमारे कारगिल की शान है। तो हमने बहुत ही कमी नहीं रहने दी यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख और IALS की तरफ से, और लद्दाख कल्चर एकेडमी और डिस्ट्रिक्ट एडमिशन अंडर द बैनर ऑफ हिल काउंसिल हमने कोशिश की एक बहुत ही यादगार मेमोरेबल कॉन्फ्रेंस करें, ताकि आने जो भी बाहर से मेहमान आए, जो भी स्कॉलर, राइटर आए, इंटेलेक्चुअल लोग जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी माना जाते, उनको एक यादगार लम्हा रहे। तो इसी सिलसिले में आज का एक क्लोजिंग सेरेमनी उन सब के क़यादत में, उन सब की लिए, और हम जितने भी हमारे चीफ गेस्ट हैं, VIPs हैं, उन सब की खिदमत में एक हमने डिनर का एक क्लोजिंग सेरेमनी यहाँ पर इनाकाद किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कुछ स्कॉलर्स का कंसर्न था कि उनका जो पेपर है वो एक्सेप्ट नहीं किया है, कुछ का रिजेक्ट किया है, तो क्या
क्या रीजन? एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें कमिटीज़ बना होता है, अलग अलग कमिटीज़ होता है, वो हाईली एक्सपर्ट है जो यूनिवर्सिटी की सीनियर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, और जो IELTS के सीनियर वो है रिसर्च को, जो जिनकी ज़िंदगी इसी में चले गए, वो लोग अपनी मतलब एक कमिटी बनाकर स्क्रूटनाइज करते हैं। अब वो नहीं देखते कि इस कम्युनिटी का क्या है, उस कम्युनिटी का, वो पेपर की वेट को देखते हैं, पेपर की बुनियाद को देखते हैं, उसकी रिसर्च को देखते हैं, रिसर्च के फैक्ट को देखते हैं, तो उसके रेफरेंस को देखते हैं। तो उनका अपना एक मेथोलॉजी है पेपर सिलेक्शन करने का, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं। लद्दाख कल्चरल एकेडमी का हमारा काम है यहाँ पर ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि एकेडमिक जो है वो IELTS खुद देखते हैं और उनकी वो किसी के साथ पसलती नहीं करते। जितना मुझे एक्सपीरियंस है, मैं भी एक सीनियर IELTS मेंबर हूँ जब से कॉलेज के टाइम पर, तो मुझे उम्मीद है अच्छा हमें मेहनत करना चाहिए, इससे हमें इंस्पायर मिलता है। हमारे बच्चों को ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। इस बार और करगिल की तकरीबन 17 लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की आउट ऑफ 53, तो ये तो बहुत ही मुबारक बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। डिप्टी सेक्रेटरी कल्चर एकेडमी लद्दाख हमारे साथ बात कर रहे थे। तो कुछ स्कॉलर से भी बात करके उनके क्या ओपिनियन है IELTS कॉन्फ्रेंस के बारे में आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। लद्दाख स्टडीज़ 21st जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल में मुनक़्क़द किया गया, और इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश से इंटेलेक्चुअल्स और स्कॉलर्स ने शिरकत करके पेपर प्रेजेंट किया है। हमारे साथ मज़ीद बात करने के लिए IELTS के प्रेसिडेंट मोनिशा मैम मौजूद हैं। मैम, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, कांग्रेचुलेशन फॉर द सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ 21st IELTS कॉन्फ्रेंस इन करगिल। आप क्या कहना चाहेंगे इस 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के बारे में, और इस साल किस तरह की पेपर प्रेजेंटेशन देखा गया और क्या इनिशिएटिव्स रहेगा आने वाले समय में? Well, I'd really like to begin by thanking everyone in Kargil for their support, for helping us host this conference, especially to the Hill Council here, to the Academy of Arts and Languages, and to the CEC, to the DC, to your Member of Parliament, to everybody who was also here with us this evening to show their support. I think it's a big commitment to show support for research on Ladakh, research, documentation, studies of the region. Many of the young students and scholars even from Kargil presented at the conference, and we were really happy to see so many come forward to make their presentations. So yes, I think it's been a successful conference, and we hope that more people will come to the next one, which we will hold in 2 years' time. Ma'am, some of the local scholars had a concern regarding the rejection of papers and acceptance. We work on a review basis. So we are an academic organization. We have standards that we have set and that we have followed for, we've been in existence now since, this is our 21st conference, but that means we've been around for at least 40 years. So papers are reviewed. There is a committee, there is a review committee, and we blind review. So we don't know who is sending in the review when we are reviewing it. So yes, we do have high standards, but I think those are standards that Ladakhis can aspire to, and that many people from Ladakh have shown that and demonstrated that they can do it. And we're taking, we want to present Ladakh on a global platform. So we want scholars to also learn, and we have also offered assistance to people that if you need help with your presentations, if you need help with writing your abstracts, we're there to help you, because we want you to excel in a global platform, not just local but global. Yeah. Ma'am, what would be the future initiatives of IELTS regarding the research and study about Ladakh? Well, everybody who is a member of IELTS has their own particular specific area of study. They all do research in topics that interest them. It's nothing that we enforce on people to study, but we are always there to encourage, to mentor. If people are looking for reading lists or they want any assistance with their help, we're always there for that. And we just hope that, we can further the future of research and documentation and study in Ladakh, because it's important to know your past, to acknowledge your past, and then as we go into the future, it helps to know your past. It doesn't mean that you're stuck in time, but just that, you know where you come from. I think that's the most important thing. And how did you find the 4 days
conference in Kargil from research to presentation? Oh, I thought it was excellent. I thought most of the papers were really good. I couldn't hear all of them because I was also, busy with other things. But I think a lot of the presentations were of a very high standard. Some of the things I had never heard before. So yeah, I was very, very pleased, very encouraged, and yes. At the end, ma'am, what's your message to the people and intellects of Ladakh? I think we have a lot to learn from Ladakh, but I also think that a lot of knowledge is getting lost here. People are moving on, new ways of doing things are coming in, and I think it's important to learn from your past as you move towards the future.